चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतिते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य कवितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sisyaman Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyaman Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyaman Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Bhakti Sri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Sri Chaitanya Charitamritam Antarga, Chapter 9. The deliverance of Gopinath Pattanayak. Gopinath Pattanayak, the son of Bhavananda Rai, was engaged in the service of government, but he misappropriated some funds from the treasury. Therefore, Varjana, the eldest son of King Prataprudra, Varjana, the eldest son of King Prataprudra, ordered that he punished by death. Thus Gopinath Pattanayak was raised on the Changa to be killed by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He was delivered. Moreover, he was even promoted to a higher post. In this chapter, Krishnadas Kaviraj Goswami explains how Lord Chaitanya Mahaprabhu saved Gopinath Pattanayak. Okay. Gopinath Pattanayak, he was the son of Bhavananda Rai. And he was the government
by the, but he misused the money of king. For this regard, he had to punished by the order of council. But when the devotees they pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu said to him, Adhanna dhanna chaitanya gananam prema vannaya nitye adhanasya janasya oru muru sapada atanu pataha. Innumerable glorious followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu brought a constant flood of the desert-like heart of unfortunate with an undetestation of ecstatic love. এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণ প্রেম রঙ্গে অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ নানাভাবে ব্যাকুল প্রভু আর অঙ্গ দিনে নিত্য কীর্তন জগন্নাথ দর্শন রাত্রে স্বরূপ শনে রস আস্বাদন ত্রিজগতে লুগাসে করেন দর্শন যেই দেখে সে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব কিন্নর সপ্ত তালের যত সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর সপ্তদেবী নবখণ্ডে বৈশে যতজন নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন প্রহ্লাদ বলি ব্যাস আদি মুনিগণ আসি প্রভু দেখে প্রেমে হয় অচেতন। Now Krishnadas Kaviraj Goswami glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu when he completely absorbed in ecstatic mood of divine love of Srimati Radhika. অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গে নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ। Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at Nilachal, অর্থাৎ Jagannath Puri, with his personal devotees, always merged in ecstatic love for Krishna. অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ। Sri Chaitanya Mahaprabhu always felt waves of separation from Krishna externally and internally. His mind and mood were agitated by the various spiritual transformation. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in this material world 48 years. 24 years he performed his household life, Grihastha Jivan. And 24 hours he performed his sannyas life, renounced order life. But in his sannyas life, plus 24 hours, 24 years, he was staying in Jagannath Puri, but first 6 years he was traveling and preaching Nam Sankirtan, and also preached against the Advaitavadi, Mayavadi, Urmi, Gani, Yogi, and other sampradayas. And he traveled Vrindavan,
sometimes he traveled South India in this way. So rest 18th years continued. He was staying in Jagannath Puri. But last 12 years he completely absorbed in the transcendental madness mood of Srimati Radhika. 10-12 साल जो है, अंतिम जो 12 साल चैतन्य महाप्रभु राधा जी के प्रेम उन्मत्त दशा में गंभीरा में रहने लगे. And that time only Swarup Damodar, Rai Ramananda, they also pacified to Lord Chaitanya Mahaprabhu. उस समय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के निकट स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु की जो है सांत्वना प्रदान करते थे. तो इसी कथा को, दिस कथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी वेरी नाइसली डिस्क्राइब इन चैतन्य चैतामृत. अंतरे बाहिरे कृष्ण विरह तरंग, नाना भावे व्याकुल प्रभुर मन और अंग. So Chaitanya Mahaprabhu felt the waves of separation from Krishna, and externally and internally his mind and body were agitated by various spiritual transformation. Prema Taranga. अंतर बाहिरे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? विरह में व्याकुलित होकर के रहते और उससे उनकी शरीर और मन अंग आदि विरह की जो दशाएं जो होती वह शरीर में प्रकाश होने लगे. When Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the transcendental madness of Srimati Radhika, then all kinds of ecstatic mood also manifested in his body. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu became about 1 or 2 meters long. Sometimes his joints completely were separated. And sometimes his hairs of the bodies and standing ears. As like the throne of the simul trees. Simul tree जानते हो? जिसमें कॉटन होता है. सिमुलेर वृक्ष जनो হয় लोम को. सिमुलेर कांटा जनो হয় लोम को. Simul trees have you seen in Brazil? I saw you. That throne is very very big and very sharp. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu's hairs standing up as like the throne of simul trees. And sometimes the blood coming from his hairs. कभी कभी बालों की नीचे से भी खून की धारा भी पड़े. Sometimes his teeth also are start to क्या बोले हिलते हैं. हाँ दांतों क्या हुए हिल जाते हैं. क्या बोलते हैं? Sometimes teeth not falling down, little one. Moving. This. I like it. Grinding. It's true. Hare Krishna. Hare. And so this is called Hiva. Various spiritual transformation of his divine life. प्रेमों की दशा यही हो जाता है. So for this regard here also explain this way. नित्य दिने नित्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन.
During the day, he chanted and danced and saw Lord Jagannath in the temple. At the night, he tasted transcendental bliss in the company of Raya Ramananda and Swarup Damodar. दिन में हरिनाम करते थे और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके नित्य गीत आदि करते थे। हाथ उठा करके अपने भावों के व्यक्त करते हुए नित्य गीत करते थे। जिस प्रकार पागल व्यक्ति क्या क्या बोलते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके एकांत में अकेला हाथ उठा करके कुछ बोलते थे। क्या बोलते थे भाषा समझ में नहीं आता था। कुछ क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी के साथ सामने, जैसे कोई पागल हो जाते ना। पागल क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ इधर के बाद उधर के बाद बोल रहे हैं, कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट भाषा में बोलते रहते। एज लाइक मैड समटाइम्स, मैड पर्सन समटाइम्स स्पीक्स clear words, sometimes also unclear. Sometimes he was looking here and there, sometimes raise his hand, dancing, singing in this. So here Krishnadas Kaviraj Goswami also explained, during the day he chanted holy names, sometimes chanted holy names, Hare Krishna, then completely stopped. Just completely stunned. And saw Lord Jagannath in the temple. At night, tasted transcendental bliss in the company of Raya Ramananda and Swarup Damodar. रात में स्वरूप दामोदर राजेंद्र के साथ रस माधुर्य कथा आस्वादन करते थे, प्रेम कथा आस्वादन करते थे। त्रिजगते लोगासी करे दर्शन, जेई देखे से पाए कृष्ण प्रेम धन। When Lord Chaitanya Mahaprabhu used to go the temple of Lord Jagannath, that time everybody also looking to him. People are not looking to Jagannath, looking to Chaitanya Mahaprabhu. जब चैतन्य महाप्रभु दिन के समय जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते थे, हजारों लोगों की भीड़ हो जाता था। लोग जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करके महाप्रभु की तरफ दर्शन करते थे। People, they did not take darshan to Lord Jagannath. They are taking darshan to Chaitanya Mahaprabhu. So here also Trijugate Lugasi Kare Darshan, Jai Dekhe Se Pai Krishna Premadhan. People from there, the three worlds used to come visit Lord Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who saw him received the transcendental treasure love of Krishna. महाप्रभु के दर्शन करके सब प्रेम में डूब जाते। सभी लोग कृष्ण कृष्ण नाम जप करते थे। महाप्रभु के दर्शन करके ही बस जहां दूर दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम एमन दयालु प्रभु। हाउ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु द एम्बॉडीमेंट ऑफ मर्सी, जस्ट टेकिंग हिज दर्शन everybody is completely absorbed in ecstatic divine love. प्रेम में डूब जाते। मनुष्य वैसे देव गंधर्व किन्नर सप्त पाताले जत दैत्य विषधर। The inhabitants of 7 higher planetary system, including demigods, Gandharva, Kinnor, and the inhabitants of 7 lower planetary systems, Patal Lok, including the demigod and serpent and serpent-lined living entities, all visited Sri Chaitanya Mahaprabhu in the dresses of human beings.
सभी लोग आ गए। मनुष्य रूप धारण करके सप्त पाताल के लोग भी आ जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। देव देवता और ये लोग सब मनुष्य रूप धारण कर रहे थे। Demigod is sometimes they manifested, disguise the form of human being and taking darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. सप्तद्वीपे नवखंडे वैसे जत जन नाना वेशे आसी करे प्रभुर दर्शन. This is in different ways. People from the 7 islands and 9 khandas visited Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रहलाद बोली व्यासुक आदि मुनिगण आसी प्रभु देखी प्रेमे হয় अचेतन. प्रहलाद महाराज, Bali Maharaj, Sri Vyasdev Goswami, Sukdev Goswami and many other great sages came to visit Lord Chaitanya Mahaprabhu. सब लोग दर्शन करें. Upon singing him, they become unconscious in the ecstatic love of Krishna. सब लोग महाप्रभु के दर्शन करके प्रेम में अचेतन हो जाते. अचेतन समझो मैंने जड़िया भावना कुछ महाप्रभु के दर्शन करके बाद मूर्छित हो जाते. And when they took darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu, they completely were fainted. महाप्रभु के दर्शन करके वे अनकॉन्शियस हो जाते. According to the opinion of some historians, Prahlad Maharaj was born in the Treta Yuga in the city of Multan, in the state of Punjab. He was the son of Hiranyakashipu, the king of dynasty of Kashyap. Prahlad Maharaj was a great devotee of Lord Vishnu, but his father was very much against Vishnu because the father, the son, thus the difference in their much against the purport. Prahlad Maharaj, he was born in Treta Yuga. Prahlad Maharaj born in Treta Yuga? Huh? लिखा है प्रहलाद महाराज born in Treta Yuga in the city of Multan. ठीक लिखा है. According to the opinion of some historians, Prahlad Maharaj was born in Treta Yuga in the city of Multan in the state of Punjab. He was born in Hiranyakashipu, a king of dynasty of Kashyap. Prahlad Maharaj was a great devotee of Lord Vishnu, but his father was very much against Vishnu because the father and son thus different in their consciousness. The demon father inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon father, inflicted all the kinds of bodily pain upon Prahlad. When this demon father, the demon fat
torture became intolerable, the Supreme Lord appeared as Nrsimhadev and killed the great demon Hiranyakashipu. Bali Maharaj was the grandson of Prahlad Maharaj. The son of Prahlad Maharaj was Viruchan and his son was known as Bali. Appearing as Baman and beginning Bali Maharaj for 3 feet land, the Lord took positions of the enter the 3 worlds. Thus Bali Maharaj became a great devotee of Lord Vamanadev. Bali Maharaj had some 100 sons, of whom Maharaj Ban was the eldest and most famous. Vasudev was the son of great sage Parasar, and other name for him as the Satyavratya and Krishna Dvaipayan Vedavyas Muni. As one of the authorized of the Vedas, he divided and organized the original Vedas and convinced into the 4 divisions: Sam, Joju, Rig and Atharva. He is the author of 18 Puranas as well as the theoretical thesis, Brahma Samhita and 8 natural commentary, Brahma Sutra. Brahma Sutra and his natural commentary, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Brahma Sutra की तात्पर्य नहीं भाषा. And he belongs to the Brahma Sampradaya and it is direct disciple of Narad Muni. Sukdev Goswami is the son of Vasudev. He was a brahmachari fully conscious of Brahman realization, but later he became a great devotee of Lord Krishna. He narrated Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. थोड़ा यहाँ पर त्रेता युग लिखे, प्रहलाद माँ तो सत्य युग में, हिरण्यकशिपु आए कब? सत्य युग, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सत्य युग. दापर युग, ये त्रेता युग, रावण कुंभकर्ण, और दापर युग शिशुपाल दंतवक्र. बाहरे पुकारे लोग दर्शन न पाए, कृष्ण कृष्ण कह बोले प्रभु बाहरे आसिया. Being unable to see Chaitanya Mahaprabhu, the populace outside his room would make a stimulus song. Thus Chaitanya Mahaprabhu would go out and tell them chant Hare Krishna. महाप्रभु अंदर में रहते, लोगों को महाप्रभु के दर्शन नहीं पाते, बाहर फुकारे लोग दर्शन न पाया. महाप्रभु के दर्शन नहीं करते, दर्शन नहीं पा रहे. महाप्रभु अंदर में
कमरा में घर में बैठा हुआ है, लोग दर्शन नहीं पा रहे, इसलिए बाहर के लोग क्या करने लगे, हल्ला करने लगे, हैं? आज तब महाप्रभु ने क्या की, घर से बाहर आकर के बोले चांद हरे कृष्ण। कृष्ण कहे, बोले प्रभु भाई आसे, प्रभुर दर्शने लोक सबे प्रेमे भासे, यही मत जाए प्रभु रात्रि दिवसे। All kinds of people would become to see Lord, and upon singing him they would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fast his day and night. Just taking darshan Lord Chaitanya Mahaprabhu. Everybody completely absorbed in ecstatic divine love of Krishna. For this year, Narottam Das Thakur is very humble. He is saying, "Takhona amar keno na hui janam? Why did not I take birth in that time when Lord Chaitanya Mahaprabhu he was performing his leela? जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, उस समय यदि मेरा जन्म हो जाते तो वह केवल दर्शन करके ही प्रेम हो जाता। अभी तो साधन भजन करके कुछ नहीं होगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है। और उस समय क्या है, केवल महाप्रभु के दर्शन करने से ही प्रेम उत्पन्न है। Now we are performing bhajan and sadhan, still anarthas are not going. Oh, where is the other devotee? Should we call to them? Huh? Upstairs, downstairs, everywhere. What is his name? Vrindavan Chandra. Same name as Gopi. Huh? गोपी के साथ गोपी के साथ गया जसो जस संगति पुंसा, संग की दोष हो जाते हैं ना। All kinds of people would become to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Upon singing him, they would be overwhelmed with ecstatic mood of Krishna. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his day and night. इसी प्रकार से Lord Chaitanya Mahaprabhu दिवारात्र व्यतीत करने लगे। दिन में क्या करते महाप्रभु, रात में क्या करते? What महाप्रभु did? Day time and night time. जगन्नाथ दर्शन और नाम संकीर्तन. डे टाइम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू टेक दर्शन जगन्नाथ, and night time Chaitanya Mahaprabhu relished prem with Sarup Damodar and Raya Ramananda. रात के समय सर्व राय रामानंद के साथ प्रेम रस आस्वादन करें। कैसे? कथा आदि के द्वारा। रायर नाटक और स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे रखे परान। When Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the separation mood of Krishna, and that time Sarup Damodar, Raya Ramananda, they also recited some verses of Srimad Bhagavatam, and especially Raya Ramananda, he recited some verses of Jagannath Ballar Natakam. And sometimes Raya Ramananda is Sarup Damodar, he recited or Kirtan Vidyapati Chandidas.
एक दिन लोग आसी प्रभु रे निवेदिल गोपीनाथेर बड़ जाना चंगे चढ़ाई लो. Now another story is coming. One day the people suddenly came to Lord Chaitanya Mahaprabhu and informed him, Gopinath Pattanayak, the son of Bhavananda Rai, has been condemned of death by the Bodhajana, the eldest son of king, and has been raised on the Changa. Changa means, understand? What is Changa? चंगा किसको कहते हैं? चंगा कहते हैं ऊपर उठा देते हैं, दोनों चार खुटी बांध देते हैं, 4 bamboo stick. Then also made they making some चारी तरफ 4 बांस को काट देते हैं और फिर ऊपर जो है 20 फुट ऊपर और बांस बांध करके रखते हैं और उसके ऊपर उठा देते हैं, जैसे सीढ़ी होता है ना, ऊपर उठा देते हैं और नीचे क्या रखते हैं, बहुत श्रफ तलवार आदि रखते हैं और वहीं से उसको नीचे गिरा देते हैं. आज फिर चंगा करते हैं. क्या बोला, समझ में आया? क्या बोला बताओ? They have a frame of bamboo sticks like this, and at the bottom 4 bamboo sticks, and at the bottom there's swords, and then the person is lowered down and dropped onto the swords. समझ में आया आपका? क्या बोलो? इसके चंगा बोलते हैं. बांस के ऊपर उठा देते हैं, 4 फुटी रहते और उसके ऊपर फिर बांस को फ्रेम बना देते. ऐसा समझ लें. वहीं से उसको क्या करते हैं, गिरा देते और नीचे क्या रहता है, बहुत जो है धारल माने ट्रैप तलवार आदि रहते, उसे गिर जाए तो बस वो कट जाएगा, मर जाएगा. उसे चंगा कहते. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was sitting with his devotee Sarvananda Raya Ramananda, and also Hari Katha is going on. In the meantime, one person came and informed him, told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, ये गोपीनाथ पट्टनायक has been condemned on the death by the Bodhajana. Bodhajana, that is the eldest son of King Pratapruta, and has been raised in the Changa. Here also explained. The Changa was a device for killing a condemned person. It consists of a raised platform on which the condemned was made of stand, and underneath the platform there was century upright swords. तलवार भी जो ऐसे खड़ा करके रखते हैं, ऐसे वाला. And the condemned man would be passed down onto the swords. In this way he would die. उसके ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए. तलवार के ऐसे करके रखते हैं अथवा खड़े करके रखते हैं और ऊपर से उसको
गिरा देगा, But, काट जाएगा पूरा, उसके छत पे लेके चलेगा, उसकी चंगा काटेगा। पहले पहले राजा लोग जो है जन समक्ष में जो अपराधी होते हैं कंडेम होता है, विचारालय में कंडेम है, विचाराधीन व्यक्ति को जो है उसी प्रकार दंड दिया जाता था। अरे सेम थिंग आई टोल्ड। For some reason, Gopinath Pattanayak had been condemned to death and had performed been raised upon the changa. उसके चंगा में अभी चढ़ाया गया, अभी गिरा नहीं, and still not fall down. তলে খড়গ বাজিতারে উপরে ডারিবে, প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে। Bardajana had placed swords and beneath the platform. They said, "We'll throw the Gopinath upon them. The Lord only if you protect him will he be saved." तो लोग आकर के कहने लगे, यदि आप कहें तो उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार महाप्रभु के निकट प्रार्थना करना। बड़े जना कौन है? अभी तो बोला कुछ बड़े जना, ये बड़े जना, हाँ, दी एल्डेस्ट सन ऑफ किंग प्रतापरुद्र के बड़े सन, बड़े है। सबंग से तुम्हार सेवक भवानंद राय और पुत्र तुम्हार सेवके राखी वे जुवाय। तीन पुत्र भवानंद राय के, तीन राय रमानंद और गोपीनाथ पट्टनायक, और तीसरी कौन है? सबंग से तुम्हार सेवक भवानंद राय तार पुत्र तुम्हार सेवके राखी देना जुआय। भवानंद राय is enter family of your servant. Therefore, it is quite fitting for you to save the son of Bhavananda Rai. नहीं, इसके 5 पुत्र था भवानंद, इसके महापुरुष के पांडु का थे। प्रभु के राजा के नाम करें ताड़न, तभी से ही लोग कहे सब विवरण। महाप्रभु ने पूछा, राजा उनको दंड क्यों देना चाहते हैं? कोई तो दोष किया होगा, तभी से वो लोग सभी कहे विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु inquired, why is the king chastising him? Thereupon the people describe the entire incident. गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भाई सर्वकाल होते हो राज विषयी। अभी गोपीनाथ पट्टनायक ने क्या किया उसके बारे में कहने लगे, उसके परिचय दे रहे हैं। ये गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद के भाई है, किंतु राज विषयी है, राजकाज में लिप्त रहते हैं, विषयी। They said Gopinath Pattanayak, the brother of Ramananda Rai, has always been a treasure for government. मालजट्ठ दंडपणे करे अधिकार, साधी पाड़ित अनिद्रव्य दिलो राजदार। He saved the place of known as Raj Maljatth Dandapani and soliciting the and collecting money,
that I am depositing deposit in the government treasury. और राजा के राजस्व जो है वो लेकर के आते थे और जमा करते थे। उसके यही काम था, राजकर संग्रह करना और उनको जमा करना, ये दो काम था उसको। He collected the taxes, government taxes, and deposit in the treasury. यही उनके काम था। 2 লক্ষ কাহন তার বাকি রইল, 2 লক্ষ কাহনে কোড়ি রাজা তো মাঙ্গিল। He collected kahans. Once he deposited the collection, however, the balance of 2 lakhs kahan means that is the money. इस समय काहन कौड़ी का ना, इतना ही समझो बस। काहन क्या करे समझो। 1 काहन इक्वल 1280 कौड़ी। फिर कौड़ी लिखा है, उस समय काना कौड़ी होता था ना, कौड़ी काना कौड़ी। कौड़ी क्या है? कॉन्सेल है। उस समय वो क्या बोलते हैं, कॉन्सेल देखा ना, वो चलता था। आजकल जैसे कॉइन चलते हैं, पैसे चलते हैं ना, पहले क्या देखा मैं, तांबे का चलता था। पहले तो सोने का चलता था, सोने के कॉइन चलता था, स्वर्ण मुद्रा जिसको कहा जाता है। सोने के अभाव होने लगे तो फिर तांबा के चला है। तांबे हैं, कॉपर कॉइन्स भी जब अभाव होने लगे तो वो लोहे के चलाने लगे। लोहा भी कम हो गया तो फिर क्या चला है? टीन है तो ना। अरे स्टील कहाँ मिलेगा? स्टील तो और भी ज्यादा बढ़ जाए, लोहे से तो स्टील तो ज्यादा पैसा है। थिन मेटल टीने होते हैं ना, आप लोग देखा? सोनार कॉइन चलते और कौड़ी भी उड़के कौड़ी को दो है तो सोना को दो। जैसे যেমন হচ্ছে 1 টাকা 1 रुपीज है, तो 1 रुपीज से 1 पैसा कहाँ से मिले? 1 पैसा कौड़ी से चलता था ना। कौड़ी मीन्स कॉन्सेल। समुद्र के तट पर देखा ना, कॉन्सेल सेल पड़ता था ना, वही चलता था। जैसे 1 पेनी है, 1 पेनी है, और 1 क्या बोलते हैं, 1 सेंट है। तो उसी प्रकार जो है, जितने छोटा छोटा मुद्रा जो है उसके कॉन्सेल में आ जाता है। ये काना कौड़ी, इसको काना कौड़ी में नहीं, उसमें ये रहता है, छेद रहता है। कॉन्सेल में वो ऐसे जाए उसे, तो कॉन्सेल तो सब जगह में मिलता रहता है। उसमें क्या करता है, कोई एक विशेष उसमें छेद रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, सिंबल होता है। नहीं तो सभी लोग तो समुद्र के तट पर जा करके तो कॉन्सेल कलेक्ट करके बोले हो गया, ऐसा नहीं है।
जैसे कागज की मुद्रा, जैसे आजकल का मुद्रा यदि कागज कितना है उसमें छप लगा, किंतु उसमें भी एक विशेष सिंबल रहता है। देखा ना, 100 रुपया के नोट में एक वो ये लिखा रहता है, बीच में जो है लाइन रहता है, कोई एक विशेष वस्तु उसमें रहता है। 100 का नोट है, देखता हूँ। ये है ना नोट, देखो ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं, गांधी जी नहीं, गांधी जो तो आपको भी लगा सकते हो। ये वाला जो है ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये सब जगह ये गवर्नमेंट के पास ही रहता है। नहीं तो ऐसे इसको नकली तो बना देते लोग, नकली बनाते हैं, किंतु ये नहीं मिलता है। गांव के लोग जानते नहीं हैं, इसमें दे देते। इसलिए एक ही नोट को जो है हजारों नोट आप बना सकते हो, लाखों करोड़ नोट बना सकते हो, किंतु ये नहीं बनेगा। वो तो ब्लैक मनी क्या है, लोग जो मानी जो ये करते हैं वही नोट कर देंगे। समझ में आया कुछ? क्या बोला? ওই দাগটা থাকবে না, ওটা পাবিটা কোথায়? भवानंद राय 5 पुत्र संग नाचे, राय भवानंद 3 पुत्र संग नाचे, सेन शिवानंद। शिवानंद सेन के जो है 3 पुत्र थे, और राय भवानंद राय के 5 पुत्र थे। उसमें विशेष करके 2 पुत्र के नाम में नाम यहाँ पर आता है। एक है राय रामानंद और दूसरी है गोपीनाथ पटनायक। इसमें लिखा है गोपीनाथ पटनायक। राज दरबार में काम करता, क्या काम करता था? राजकोष माने टैक्स कलेक्शन करता। किंतु उन्होंने क्या की? 200,000 he did not deposit। कुछ लोग कलेक्शन का किया और जमा नहीं किया। ब्रह्मचारी भिक्षा में गए और कुछ पकड़ में रख दिया, कुछ दे दिया और कुछ नहीं दिया, जेब में डाल दिया। 10 आना और 6 आना कलेक्शन करके 10 आना जो है माने 10 आना पकड़ में रख लेते हैं और 6 आना गुरु के दे देते हैं। तो एक जगह है नाटक चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, समझ में आ रहा? हिंदी समझ में आ रहा है? तो उस ड्रामा में ऐसे हुआ कि जो प्रॉम्प्ट करने वाले हैं तो उनको जो वेतन मिलता है 10 आना 6 आना मिलता है। जो ड्रामा करते हैं, नाटक जो अभिनय करता है उसके मिलता है 10 आना। 10 आना समझते हो? आना समझते कि नहीं? 60% और 40% ये समझो। And who is promoting, he will get salary 40%, and who is performing drama, he will get 60%. So now drama is going on this way. Who is promoting, so he is saying this way. Then who is dancing, who is performing the dance, then he forgot his role. He forgot his role.
Then promoting person is saying, hey, tell to me. Well, no, I will not tell to you. Because and you forget everything, so I will tell you. Because this is your duty. Because and I will get only 40% and you will get 60%. तो मेरे गुरुदेव इसको कहते थे ये काजेर तुम्हारे सो है क्या बोलते थे भूल गया बोले जब वो शेयर होता है तो मेरा 40% तुम्हारा 60% तुम्हारे के लिए मैं क्यों बोल दूँ है कि नहीं क्या बोल मैं भूल गया गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे बोले काम काजेर समय बोले तुम्हारे तो 60% तुम लोगे और मुझे तो केवल 40%। प्रमोट कितना करते हैं पर तुम बोलो जहां पर थोड़ा भूल जाए तो मैं कर दूंगा। यही तो प्रमोट करते हैं ना। यात्रा सुना करो बंगाल में यात्रा करते हैं ना जो रोल करता है वो तो करते जा रहे हैं और उनके पास जो प्रमोट करते हैं पीछे बैठता है वो और जो प्रमोट करते हैं जो रोल जो कहीं पर थोड़ा बोल देते कर नहीं पाते तो वहीं पर वो उसके ये कर देते हैं हेल्प कर देते हैं। क्योंकि पूरा ही रोल जो भूल गया तो उसके बोले मैं तुमको क्यों बताऊं। प्रमोट करना तो उतना ही है जहां पर थोड़ा बहुत तुम रुक जाओ और पूरा रोल तुम भूल गया मैं तुमको क्यों बताऊं। तो कह रहे हो ये भागे समय 10 आना 6 आना भाभी क्यों बताए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है ये पूर्ण रूप से होना चाहिए। अच्छा चलो ये सब कथा छोड़ो। 2 लक्ष कहन तार ठाई बाकी रही 2 लक्ष कहन कौड़ी राजा तो मांगिलो। Once he deposited the collection, however, a balance of 200,000 kahan and counsel was due from him. Therefore, the king demanded his sum. राजा ने कहा कि तुम 2 लाख अब आप तुमने जमा नहीं किया। उन्होंने रुपया तो कलेक्शन कर लिया। कौन? गोपीनाथ पट्टन है किंतु राजा के वो 2 लाख। अच्छा चलो काहन फान क्या समझोगे तुम? रुपया समझ लो। ये कॉन्सेल तो उस समय तो कॉन्सेल चलता था। ये इतनी सीधी रूप में समझो। यू कैन सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड। गोपीनाथ पट्टनायक ही कलेक्टेड taxes. How much? A lot of taxes is not mentioned, but he did not deposit 200,000. Then king asked him, "Where that taxes, money? Why did not you deposit?" Gopinath Patnaik replied, "There is no money. I am immediately give you in the cash. Please give me time." तो राजा ने कहा तुम मेरा दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास अभी है नहीं तो बोले नहीं। राजा ने कहा क्या अभी देना पड़ेगा क्यों? राज टैक्स जो है तुम रख नहीं सकते हो। इसलिए कहते हो कि स्तुद्रव्य नहीं दे दी नहीं ये दिव गणी क्रम गुणे बेची दिव द्रव्य भरिव। गोपीनाथ पट्टन ने कहा ये मेरे पास अभी पैसा नहीं है। उसे तो पैसा को उल्टे सीधे में काम खर्च कर दिया, जमा नहीं किया ना। तो राजा ने जब पैसा मांगा उन्होंने कहा मेरे पास तो कैश नहीं है। आई हैव नो कैश बट आई हैव सम प्रॉपर्टीज। मेरा कुछ संपत्ति है
उसके धीरे धीरे बेच करके आपको दे दूंगा। आई हैव सम प्रॉपर्टी, आई विल सेल माई प्रॉपर्टी, देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आई विल पे यू बैक। और राजा ने क्या कहा, बोले नहीं अभी तुमको देना पड़ेगा। बोले चलो क्या करना है, घोड़ा 10-12 लोहाय लोहा मूल्य करी, ये तो बोली घोड़ा ने राजदारी धोरी। There are 10 or 12 good horses, and take them immediately for a proper price. After saying this, he brought all the horses into the door of king. ये इसमें कह रहे हैं, वो गोपीनाथ पटेल के जो है कुछ घोड़ा था, उस घोड़ाओं के राजा के लोग पकड़ करके लाए। इस घोड़ा के मूल्य कितना होता है? उसी मूल्य के अनुसार उसके सारे पैसा वसूल किया जाए। ऐसा समझ रहे? पैसे वसूल करना पड़ेगा। इसलिए बोला उनके घोड़ा को सब पकड़ करके लाया। किसका घोड़ा को? गोपीनाथ पटने को। इन्होंने कहा मैं बेच करके दूंगा धीरे धीरे। बोले धीरे धीरे नहीं, सब अभी ले आओ, सब एडजस्ट कर ले। बोलाओ सब। इसके क्या बोलते, क्रिकेट क्या बोलते, वो हो जाता है ना, बैंकक्रप्ट होने के बाद उनके भी कोई भी संपत्ति रहता है थोड़ा बहुत, उसके भी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रुक कर देते हैं ना, है क्या बोलते हैं इसको, राजा उसको ले लेते हैं। चलो है बाय फोर्स ले लो, है थोड़ा बहुत मकान भी रहे, यहाँ तो घर में भी टीवी भी रहे, कुछ भी रहे, सब लेकर चले जाते हैं। क्योंकि हिंदी में एक शब्द बोलते हैं ना, कुड़की जारी। हाँ कुड़की जारी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कुड़की जारी हो गया है। उनके घर में कुछ नहीं रहे, मकान तक भी सब ले गए, कुड़की जारी। तो उसी प्रकार कहने लगे तुम्हारे तो घोड़ा है, चलो घोड़ा को लेकर जाओ सब, और घोड़ा के मूल्य भी निर्णय किया जाए। एक राजपुत्र घोड़ार मूल्य भालो जाने, अरे पाटिल और राजपत्र मित्र सने, बोले एक घोड़े के मूल्य कितना होगा। इसलिए एक one of the prince knew how to estimate the price of horses very well. Thus the king sent for him to become with his ministers and friends. राजा जो है अपने मित्रों और मंत्रियों के भेजा, जाओ उनके घोड़े के मूल्य है मूल्यांकन करो, कितना हो सकता है। कम से कम 2 लाख तो होना चाहिए ना, है 2 लाख रुपए होना चाहिए। कितना होता है देखो। सही राजपुत्र मूल्य करे घटाइया, गोपीनाथ क्रोधिलो मूल्य सुनिया। The prince, however, properly gave a reduced the estimate for the value of the horses. घोड़ा के मूल्य यदि 5,000 रुपया हो, वो कहने लगे घोड़ा के मूल्य कितना होना चाहिए, है चलो 2,000 कर दिया। तो इस कथा सुन के गोपीनाथ गुस्सा हो गया, अरे मेरे घोड़े के तो मूल्य 5,000 रुपया है, किंतु वो राजपुत्र कितना बोले 2,000। इसलिए गोपीनाथ he became very angry. When Gopinath Patanath heard the price quoted, he was become very angry. सही राजपुत्र स्वभाव ग्रीवा फिराइला, ऊर्ध्व के बार बार इथि उथि चाय। The prince had a personal additionally, and turning his neck and facing to the sky and looking here and there and again and again.
this nature of the prince. He also are looking here and there. Looking. गोपीनाथ पटक ने कहा मेरे घोड़े के मूल्य अधिक होना चाहिए, तुम कम क्यों किया है? तो राजपुत्र ने इधर उसे ऐसे देखने लगे। तारे निंदा करी करे कहे सर्व वचने, राज कृपात करे तार भय नहीं माने। और राजपुत्र बहुत दुष्ट था। The Gopinath Pattana criticized the prince and he was unafraid of prince because the king was very kind towards him. हमारे घोड़ा ग्रीवा ना फिराइया उड़ते नहीं जाए, काहे घोड़ार मूल्य घाटी करिते ना जुआए। Gopinath Pattana said, my horses never turn their neck or look upwards. Therefore the princes for them and should not be reduced. वो राजपुत्र क्या करेंगे, तुम्हारे घोड़ा जो है अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारे घोड़े के मूल्य मैंने कम कर दिया है। सुनिए राजपुत्र ये कहने चाह मैंने गोपीनाथ पट्टन उनको भी क्रिटिसाइज करने लगे है। कुछ घोड़े होता है शांत होता है और कुछ घोड़े जो है बहुत है अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा एजिटेटेड होता है, अपने नेक को जो ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए तुम्हारे घोड़ा अच्छा नहीं है। ये राजपुत्र ये कहते जा रहे हैं कि तुम्हारे घोड़े के मूल्य इसलिए मैं कम कर दिया, तुम्हारा घोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा क्या है, कुछ घोड़े शांत होते हैं, उसमें आप बैठ सकते हो, चढ़ सकते हो, यू कैन राइड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स वेरी इजीली। और सम हॉर्सेस दे आर वेरी व्हाट इज कॉल्ड वाइल्ड है, उसमें बैठने के जाओ वो जो है अपने नेक घाड़ को जो है ऐसे ऐसे करते हिलाएंगे, शरीर को सेटिंग करेंगे, बैठने नहीं देंगे। इसलिए वो राजपुत्र यही कह रहे हैं ये तुम्हारे घोड़ा अच्छा नहीं है। इस कथा सुन करके राजपुत्र तुम जो घोड़ा जो ऐसे दिखा रहे हो इसे सुने राजपुत्र मने क्रोध उपजिल राजा ठाई बहु गाला नहीं लागिलो। राजपुत्र करने लगे, वो भी गुस्सा आ गया। समझे क्रिटिसाइज समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया सर, फिर बताता हूँ हिंदी में। वो राजपुत्र जब घोड़े के मूल्य जब निर्णय करने लगे तो उसके एक घोड़े के मूल्य मानो आधा मूल्य कर दिया। यदि 5,000 रुपया हो उसके कितना कर दिया, 2,500 कर दिया। तो गोपीनाथ पट्टनायक ने कहा मेरे घोड़े के मूल्य इतने कम क्यों, घटाया क्यों? तो राजपुत्र ने कि कुछ बोले ही नहीं, वो भी अपने घाड़ को इधर उधर हिलाने लगे। माने ये कहना चाहते हैं तुम्हारे घोड़ा अच्छा नहीं है। तो गोपीनाथ पट्टनायक उसके निंदा उसको भी करने लगे, बट तुम्हारे भांति हमारे घोड़ा नहीं है। तुम जैसे अपने ग्रीवा को माने नेक को ऐसे ऐसे कर रहे हो, मेरा घोड़ा ऐसे नहीं है, तुम घोड़े के भांति करते, उसकी निंदा होता है। जिस कथा सुनकर राजपुत्र की जय गुस्सा आ गया। सुनी राजपुत्र मने क्रोध उपजिल राजा ठाई बहु लगाने लागिलो। Hearing this criticism, the prince became very angry and going before to king, he made some false allegation against Gopinath Pattanayak। उनके ऊपर false allegation लगा दिया है, झूठ मूठ बोल दिया। ये क्या बोला, ये आपको कर्ज देना नहीं चाहते हैं, जो पैसा तो खा लिया और घोड़ा भी देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं फॉल्स एलिगेशन लगा दिया। कौड़ी नहीं दिवे ये
বেড়ায় ছদ্ম করি, আজ্ঞা দেয় যদি চারে চাঙ্গায় চাঙ্গায় চড়াই দেই কৌড়ি। The Gopinath Pattanayak, he said, is unwilling to pay the money due, and instead he is quarreling and some pretext. If you issue on order, I can put him on the Changa and thus realize the money. राजपुत्र ने राजा के पास जाकर कहा, एक गोपीनाथ पट्टनायक पैसा देना नहीं चाहते, वास्तव में घोड़ा बेचना भी नहीं चाहते, उल्टा सीधा बोल दिया ना। और आप यदि आदेश दे इसको चंगा में चढ़ा करके बस मार देता है। राजा बोले जय भालो सही करा जाए, जे उपाय कोड़ी पाए करो सही उपाय। राजा ने क्या कहा? द किंग रिप्लाइड, you can adopt whatever means you think best, any device. By this way you can somehow or otherwise the money is all right. किसी प्रकार से पैसा उसके उसूल करना चाहिए, है? पैसा देना नहीं चाहते, चलो उसके चांगा में चढ़ा के मार दो और उसके सारे घोड़ा को ले लो, बस ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, है? वो भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, चलो सब ले लो। राजपुत्र आसी तारे चांगे चढ़ाइल, खड़ग ऊपर फेलाइते तारे खड़ग पातिल। Thus the prince went back and raised Gopinath Pattanayak onto the platform of Changa and spared swords below upon which is thrown him. पर इसको मार दिया जाए। पहले पहले राजा लोग क्या अपने इच्छा से चप चला जाए, चलो इसके धन भी अपहरण कर लो, उसके भी मार दो, मतलब क्या उसके घोड़ा भी ले लिया जाए और उसके मार दो। ये दुष्ट है। राज टैक्स को इन्होंने राजकर को खा लिया है, इसलिए अपराधी को 2 दंड दिया जाए, इसके अर्थ भी ले लिया जाए और उसके भी मार दिया जाए, है कि नहीं? उसके कारागार में डाल दो और भी उसके क्या करना जाए, है? सब ले लो। सुनी प्रभु तरे किचु कोरी प्रणय रोष राजकोड़ी दीता ना रे राजा की बादोस। जब महाप्रभु इस कथा को सुना, महाप्रभु भी गुस्सा हो गया। महाप्रभु ने क्या कहा? जे राजा की राज को टैक्स लिया, टैक्स क्यों जमा ने क्यों नहीं किया, अपने खा लिया, इसलिए उसके दंड होना चाहिए। आफ्टर हियरिंग दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ श्री चैतन्य, महाप्रभु रिप्लाइड विथ affectionate anger, Gopinath Pattanayak does not want to pay the money that is due the king. The Lord said, how then is king at fault in punishing him? इसमें राजा के दोष क्या है? राजा के धन लिया, राजकोष ले लिया, उसको वापस करना चाहिए, है? राज बिलात शादी खाए नहीं राज भय, दारी नटवारे दिया करे नाना व्यय। यहाँ पर महाप्रभु कहने लगे गोपीनाथ पट्टनायक is in charge of collecting money on behalf of government, but he misappropriate it not fearing the king, and he now he is coming in his fear. राजा के धन तो ले लिया और धन लेकर के क्या किया? अपव्यवहार किया, मिस यूज किया। यहाँ पर लिखा दारी नाटवरे दिया करे नाना बाय। दारी मीन्स मिस यूज द मनी फॉर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ये बात सब है।
जिसको किया गया डांसिंग विद द गर्ल्स. दारी नटुआ मीन्स इज व्हाट? डांसिंग विद द गर्ल्स. है उस समय क्या करते थे? उस भाड़ा दे करके लड़कियों के लेकर के नृत्य गीत करते थे. इसलिए महाप्रभु ने भी कहा दिया दारू नाटिया माने भाड़ा लड़कियों के लेकर के पैसा दे करके नृत्य गीत करते. राजकोष का राजकोष का पैसा व्यवहार किया एंड यूजिंग एंजॉइंग दैट फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो उसको दंड होना चाहिए. महाप्रभु ने कहा उसको दंड होना चाहिए. সেই যেই চতুর্থই করুক রাজ বিষয় রাজদ্রব্য সদি পায় তার করুক ব্যয়. If one is intelligent, let him to perform service to government, and after paying the government, he can spend whatever money is left. হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া বাণীনাথ आदि सब से लया गेलो बांधिया. केवल गोपीनाथ पटेल बोले उनके सारे परिवार को बंद करके लिया घर में जो है. ये तो पैसा नहीं दे रहे, इसको भी ऊपर चढ़ा दिया जाए और उनके परिवार लोग को भी अरेस्ट करो, तंग करो. सब पैसा हो सकता है. कुछ लोग होते हैं ना अपने पास कुछ नहीं रखते, अपने परिवार के पास रख देते हैं, तो उनके भी पिटाई करो, दूसरी पैसा लेते हैं. इसलिए कह रहे हैं. At that time another person came there in great haste and bringing the news. Baninath Rai and his entire family had been arrested. प्रभु के राजा अपने लेखार द्रव्य लइब आमी विरक्त सन्यासी ताकि की करिब. महाप्रभु ने क्या कहा? मुझे क्यों ये सब बोल रहे हो? राजा के द्रव्य राजा की टैक्स तुमने कलेक्शन किया, राज टैक्स को तुमने जमा नहीं किया, तुम्हें भोगना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँ? कोई व्यक्ति आकर के महाप्रभु के बोला, नाम तो नहीं दिया, कोई व्यक्ति आकर के बोले ये गोपीनाथ पट्टनाथ राजा के द्रव्य यानी टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए उनके पुत्र जो है उनको चंगा में चढ़ाने लिए और उनके घोड़ा भी ले लिया. ये भी घोड़ा देने नहीं चाहते हैं, उल्टा सीधा कर. इसलिए केवल नहीं है, राजा के आदेश क्या हुआ? उनके सारे परिवार के बंद करके लाओ, सबके बिटाई करो. कहाँ रखा पैसा? प्रभु के राजा अपने लेखार द्रव्य लइब आमी विरक्त सन्यासी ताकि करिब. पर तुमने राजकोष के पैसा नष्ट किया, हम विरक्ति सन्यासी है, हम इसे क्या सहायता कर सकते हैं? तबे स्वरूपादि तो प्रभु भक्तगण प्रभुर चरणे कइल तबे सबे कइला निवेदन. महाप्रभु कुछ प्रणय कुछ रोज से बोले. Then at the devotees headed by Sarup Damodar fell at the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and submitted the following plea. रामानंद राय गोष्ठी सब तुम्हारा दास, तुम्हार उचित नहीं वही उदास. सर्व दामोदर महाप्रभु कहने लगे प्रभु किंतु इनके परिवार तो सब आपका ही सेवक है. इसलिए आप थोड़ा मदद करें, उदासीन होना नहीं चाहिए. उदासीन नहीं जानते माने इनडिफरेंस है. कुछ तो इन्वॉल्व होना चाहिए भाई. भक्त जो है कुछ उसके लिए तो कुछ मदद करना चाहिए ना. यू हैव सम हेल्प द डिवोटीज. जिनको मरने दो. इसलिए स्वरूप दामोदर कहने लगे प्रभु
उनके सारे राजमंद के सारे परिवार आपके तो भक्त है, इस भक्त के लिए आप कुछ मदद करें। उदासीन होना नहीं चाहिए, इग्नोर करना नहीं चाहिए। है क्या? इंडिफरेंट सुनी महाप्रभु कहे सक्रोध वचने मरे आज्ञा देव सबे जाऊं राजस्थाने। तो महाप्रभु बिकम वेरी एंग्री। आफ्टर हियरिंग दिस चैतन्य महाप्रभु स्पोक एंड एंग्री मूड, यू वांट टू ऑर्डर मी टू गो टू द किंग? ही सेड, महाप्रभु ने कहा इसका मतलब तुम मुझे कहते हो क्या? महाप्रभु स्वरूप दामोदर के ऊपर भी गुस्सा हुआ। महाप्रभु कभी स्वरूप दामोदर राम पे गुस्से नहीं होते थे, किंतु अभी भी स्वरूप दामोदर को गुस्सा हो गया। इसके मतलब मैं राजा के पास जाकर के कहूं जे इनको छोड़ दो, है? तुम्हार यही मत, तुम्हार सवार यही मत, राज ठाई जाया ओड़ी मांगी लो मुई आंचल बातिया। इसका मतलब राजा के पास जाकर के वो पैसे वही मांग लो, ऐसा छोड़ इसको छोड़ दिया जाए। योर ओपिनियन इज दैट आई शुड गो टू द किंग्स प्लेस and spare my clothes to beg money for him। राजा के पास जाकर के मैं पैसे मांग, जिसको छोड़ दिया जाए। स्पेयर मान मांगना, अंचल पत करके मांगना, ये चलो मुझे भिक्षा दे दो। क्या भिक्षा? गोपीनाथ पट्टनायक ने जो 2000 न 2 लाख कोड़ी लिए नष्ट कर दिया, वो आप मुझे दे दो और आपको मैं वो पैसा दे देता हूँ। यही तो कहने की तात्पर्य होता है? समझ में आया कि नहीं? अरे ही एक्सप्लेनिंग, क्या बोला? नहीं सरदार ने महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु रिप्लाई, इसके मतलब all you are forced to me, I have to go in front of king and ask him, okay, you give me 200,000 coins and which he lost, then I offer to you। जो पैसा वो नष्ट कर दे उसके राजा के पास मांग लेता हूँ और फिर राजा को उसको वापस कर दो। यही तो कहना है, समझ में आया? नष्ट किसने किया? पैसा को, गोपीनाथ पटेल ने। तो राजा से मैं भिक्षा मांग लेता हूं और फिर उसको वापस कर दो, चलो ये पैसा आप ले लो। यही महाप्रभु कहना चाहते हैं। तुम्हारा सवार यही मौत राजा ठाई जाया कोड़ी मांगी लौ मुई आंचल पातिया। 5 गंडर पात्र है सन्यासी ब्राह्मण मांगिले बा क्या ना दिवे 2 लाख कहा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ऑफ कोर्स सन्यासी और ब्राह्मण में बेग फॉर अपन 5 गंडर्स, बट व्हाई शुड ही बी ग्रांटेड मी एंड 200,000 काहन? राजा के पास मैं कितने पैसा मांग सकता हूँ? 5 रुपया मांग सकता हूँ। तो राजा के पास जब मैंने कहा दूं मुझे 2 लाख दो, राजा थोड़ी दे देंगे मुझे, है? देंगे कोई? राजा तो देंगे नहीं मुझे, तो मैं कैसे मांगू? सन्यासी के लिए कितना चाहिए? 5 रुपया चाहिए उसके भोजन के लिए, है? तो उसके मैं कहा 2 लाख 2 लाख क्यों भी देंगे मुझे? महाप्रभु यही कहते जा रहे हैं। है ना काले 8 लोग आईला धाइया खड़गे ऊपर गोपीनाथ दिशे न डरिया। Another person came with the news Gopinath had already been set up at the throne upon the points of swords। उसके चढ़ाया गया, अभी उसको क्या बोले डालने वाला है, उसके ऊपर तो चढ़ा दिया।
শুনি প্রভুগণ, প্রভুরে করে অনুনয়, প্রভুকে আমি ভিক্ষুক, আমা হইতে কিছু নয়। তারে রক্ষা করতে যদি হয় সবার মনে, সবে মিলি জানো जगन्नाथ चरणे। महापुरुष ने कहा बोले मैं भिक्षु सन्यासी हूँ, मेरा द्वारा ये सब काम नहीं होगा, विषय समझ जाओ, तुम लोग जाओ जगन्नाथ जी के पास जाओ, जगन्नाथ जी के पास जाकर के प्रार्थना करो, जगन्नाथ रक्षा करेंगे। जैसे वो सनातन गोस्वामी पाद के पास सेठ जी आकर के बोले ये मेरे नाव जमुना में जो है कि बोले डूब गया नहीं, अरे डूबे नहीं, जमुना में आकर के वो चोरा बालू में वो लग गया, अटक गए, आगे नहीं जा रहे। जाप कोई मंत्र तंत्र कर दीजिए, मेरा नाव चले। सनातन गोस्वामी के पास बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जाओ उसे मदन मोहन के जब पास जाकर बोलो। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोले तो आप लोग मेरे पास क्यों नहीं उन्होंने विनय करे। Hearing this news, all the devotees again applied to Lord Chaitanya Mahaprabhu, but the Lord replied, I am a beggar, but it is impossible for me to do anything about this. तारे रक्षा करते यदि सवार मने सबे मिली जानो हो जगन्नाथेर चरणे। Therefore, if you want to save him, you should all pray together at the lotus feet of Lord Jagannath. जगन्नाथ के पास जाकर बोलो, ईश्वर जगन्नाथ और हते सर्वर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करिते समर्थ। Lord Jagannath is the supreme personality of Godhead. He possesses all potencies, therefore he is able to act freely and can do and unto the whatever he likes. सब लोग जाकर के भगवान जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो और जगन्नाथ जैसी इच्छा ऐसी करेंगे। यह यदि महाप्रभु एत तो कहिला हरिचंदन पात्र जाई जगत राजा रे कहिला गोपीनाथ पट्टनायक सेवक तुम्हार सेवकेर प्राणदंड नहे व्यवहार विशेष तार ठाई कौड़ी बाकी है प्राण निले की लाभ है निज धन क्षय यथार्थ मूल्य घोड़ा लह जेवा बाकी है क्रमे क्रमे दिवे व्यर्थ प्राण केने लय। हरिचंदन राजा की जो है सेवक था, वो राजा के पास जाकर के कहने लगे ये गोपीनाथ पट्टन आपके सेवक है, उसके मारने से क्या प्राण दंड देने से क्या आपके धन मिल जाएगा? नहीं तो मिलेगा। एक काम की जाए, ये यथार्थ मूल्य में उसके घोड़े को खरीद करके लिया जाए, हाँ आधा मूल्य नहीं है, और बाकी जो रेस्ट रहेगा मूल्य रहेगा वो धीरे धीरे चुका देंगे। मानो घोड़े के मूल्य 10 घोड़ा है, 10 घोड़े के मूल्य कितना होगा? 1 लाख रुपया मानो, 2 लाख रुपया तो उसके कर्ज है और 1 लाख धीरे धीरे दे देंगे, उसके मारने से फायदा क्या है? हरिचंदन ने राजा की ये सलाह दी। राजा काना होता है और जल काना होता है। राजा काना होता है, किंग इज ब्लाइंड और वाटर इज ऑल्सो ब्लाइंड। राजा को जैसे लोग बोलते हैं ना वो ऐसे करता है, राजा थोड़ी जाता है और पानी को जहां पर ले जाए वो पानी पर वहीं पर चले जाएगा, ऊपर चढ़ा तो पानी ऊपर चल जाएगा, नीचे गिरा तो नीचे में चला जाएगा। इसलिए कहावत है राजा काना और जल काना। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला बांग्ला में बताओ? जल हाँ কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখে না, जल के नीचे तरफ ले जाओ जल नीचे चला जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाओ जल भी ऊपर में जाएगा। इसलिए बंगला में ये कहावत होता है जल का ना राजा का ना, है कि नहीं?
है? पहले उन्होंने क्या, राजपुत्र ने क्या कहा, ये गोपीनाथ पटनायक पैसा नहीं दे रहा, तो उसके क्या की जाए? बोले इसके घोड़ा के लिए ले जाए। अच्छा घोड़ा ले लो, है? और उसके मार दो, ऐसे मार दो। राजा सब जब हाँ 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 में हाँ, ना में ना। और फिर हरिचंदन जाकर के क्या बोल रहे हैं? अरे वो अपना सेवक, वे आपके सेवक भी है, और उसके मारने से उसके क्या आपके पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा हाँ ये भी बात सत्य है ना, हाँ में हाँ, ना में ना मिला रहे हैं। इसलिए राजा काना और जल काना है, बुद्धू है सब। राजा को जाकर के देखना चाहिए ना, जो वास्तवता हुआ क्या है। इसलिए प्राचीन काल में राजा लोग वेश बदल करके छद्मवेश में घूमते थे, है? ये वास्तव रूप में राज आइन पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रजाओं को सुख सुविधा है कि नहीं है? विक्रमादित्य के कथा हम सुनते हैं, विक्रमादित्य भी राज वेश बदल करके जाते थे, देखते थे, रामचंद्र छद्मवेश में गेलन। कौन? रामचंद्र छद्मवेश में गेलो ना। हाँ, छद्मवेश सब प्रजा की क्या मन, ये सीता जी के ऊपर निंदा ये प्रजा लोग वास्तव कर रहे हैं कि लोग सुनते जा रहे हैं? इसलिए राजाओं की वास्तव, जो राजा होता है उनके नियम होता है। आजकल राजा नहीं होता है बस। राजा कहे यही बात আমি नहीं जानी, प्राण केने লইব সে দ্রব্য নাই, দ্রব্য तार द्रव्य चाहिए अमी। राजा ने क्या कहा? बोले नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा, उसको मारने के लिए मैं अनुमति नहीं दिया। उनको मैं क्या अनुमति दिया? उसके धन को जाए कुर्की जारी कर लो, बस कुर्की जारी ना कर लो, उसको मारने के लिए आदेश नहीं दिया है। राजा एक कहते हैं और उनके सेवक हाँ उनका और कुछ बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है सेवक ना, सेवक अपने बहादुरी दिखाते हैं कभी। हाँ, सेवक कभी कभी राजा एक शब्द बोले तो उनके सेवक 10 शब्द बोले, आए समझे? तो हम लोग उसमें पढ़ते थे, क्या बोले, क्लास 9 और 10 में एक था ना, बाबू जो तो बोले परिषद बोले तार 10 गुण, शतगुण दुई बीघा जमी था ছিল 2 বিঘে আর কি ইয়াদ আছে, মনে আছে? ছিল মোর দুই বাবু আসিল কহিল ছিল মোর ভুই আর সব কাছে ঋণে বাবু বলিলেন শুনেছ হ্যাঁ ক্লাস 9 और 10 মাধ্যমিক আমাদের মাধ্যমিক ছিল, আমাদের একাদশ ক্লাস ছিল 11। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুই আর সব গেছে ঋণে। বাবু এসে কহিল আমার দুই উপেন এ জমি লইব কিনে, क्या साधेर बागान खानी दीर्घ प्रस्ते हईबे टाना। आमी कहिलाम तुमी खुले गेछे एकटु एकटु मने आछे। अरे आज के 40 बछर हो गेल, 40 ইয়ার্স 40 বছর হয়ে গেল পড়া। हाँ ওটা बहुत করুণ কিন্তু সে কিরকম মারা গেল ও তোর মনে হচ্ছে না।
जग जो हराए बाबू बहुत सुंदर है 7:30 বেজে মনুষ্য না একটা The king answered in surprise, I did not know about all this. Why should his life be taken? I only want the money from him. তুমি যাই করো তাহা সর্ব সমাধান দ্রব্য জয়িছে আসি তার কহি প্রাণ যার প্রাণ Go there and adjust everything. I want only payment, not only his life. তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল চাঙ্গে চাঙ্গে হইতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল हरिचंदन आकर के बोले राजपुत्र को बोले राजा के आदेश हुआ इसको चांगा में इसको प्राण से मार मत मारो राजपुत्र ने क्या की 2 उंगली बढ़ा दी राजा ने कहा इसको पैसा वसूल करो चलो पैसा वसूल करो राजपुत्र बोले इसको मार दिया जाए इसके घोड़ा भी ले लिया जाए इसको मार दिया जाए बस चलो यहीं पर है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम इसके तात्पर्य क्या है समझ में आया ये जगन्नाथ और महाप्रभु महाप्रभु कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं जगन्नाथ के मतलब क्या है महाप्रभु तो जगन्नाथ जी के महाप्रभु जगन्नाथ के अंतर नहीं है जगन्नाथ जी के साथ प्रार्थना करना महाप्रभु के प्रार्थना एक ही बात है ये महाप्रभु कहना चाहते हैं ऊपर से महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जो प्रार्थना किया तुम वही जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना करो तो इसको महाप्रभु के सहमति हो गया कि नहीं हुई है हाँ और क्या महाप्रभु अरे महाप्रभु कृपा हुई ना ईश्वरीय कृपा ले तो जहाँ तब तो उसके समझेंगे लेकिन राजा का कर्तव्य बनता है दंड देना अपराध के लिए नहीं राजा का कर्तव्य है जो राज को उसके नष्ट करते हैं उसको दंड देना है राजा के कर्तव्य है ये नहीं है जो ये मेरा सेवक है और नष्ट कर दिया उसके क्षमा कर दिया ऐसे नहीं राजा के कर्तव्य है राजा के पास कोई मित्र नहीं है कोई शत्रु नहीं है रामचंद्र ने क्या कहा रामचंद्र ने कहा आदर्श राजा के क्या है आदर्श राजा उनके कोई मित्र नहीं है कोई शत्रु नहीं होता उनके माता पिता भाई बंधु भी कोई अपराध करे उसके वही दंड होना चाहिए ये नहीं वो मेरा भाई है मेरा पत्नी है अपराध कर दी अपराध क्षमा कर दे ऐसे लक्ष्मण भी दंड दिया कि नहीं लक्ष्मण विसर्जन कर चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम इसको समराइज बोलो क्या बोला बोलो 2 मिनट बोलो का पूरी कहानी अरे थोड़ा सा पूरी कहानी 5 मिनट बोलो अच्छा बोलो हिंदी में ना इंग्लिश में बोलो अच्छा yes so there was a person called Gopinath Patnaik and he was a treasurer for the king Buddha and he misappropriated some funds for himself 2 lakh rupees and so the king found out about his activities and the prince found out about his activities and he decided to punish him and initially what he wanted to do was take his property from him. He estimated how much
his horse was, but he gave a very low estimation for it. And then Gopinath Patnaik got very angry about this, and he started to criticize the prince, because the prince started moving his head like this. So Gopinath Patnaik said, "My horse is not like this, my horse is very calm." And so this implied that the prince was like a wild horse moving his head. And then the prince went back to the king and said that he should be punished to death, and also his property should be taken. And then Gopinath Patnaik was put onto on the changa. And The top of the stairs. top of the stairs. Stairs. Yeah, top of the stairs. And fell down on the sword. Not yet. नहीं, उसके आधे उसके चांगा शब्द के अर्थ होता है उसको ऊपर चढ़ा करके नीचे गिरा दो। नीचे कहाँ गिराएंगे? जहाँ पर सोड रखा गया, तलवार रखा गया, उसके ऊपर गिरा दो। Yeah, so he should be put onto this apparatus and lowered down onto the swords, which are at the bottom. And then Raya Ramananda pleaded to Chaitanya Mahaprabhu. Sarup Damodar pleaded to Mahaprabhu, could you please save his life? Why? Because Sarup Damodar prayed to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Rai Bhavananda and all his families, they are your devotees. So you have to help to them. And understand? So for this regard, but Lord Chaitanya Mahaprabhu told, how can I help to them? Because Gopinath, he misused the money of king. So you have to get the punishment. So how can I help to him? That means I want to go to the king and pray, hey king, give me money, and will spare my cloth. This is not my duty. I am sannyasi. Why I am to go in front of king and ask these things and material things? And he misused the money of king. ये बात है. Then again and again say, okay, Chaitanya Mahaprabhu told, okay, you have to go to the pray to Lord Jagannath. Maybe Lord Jagannath saved him. Saved to him. That time all they came and prayed to Lord Jagannath. Then in the meantime, Harichandan, that means Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath, non-difference. And then Harichandan, he also prayed to Lord, he also told to King Prataprudra. They are white, if you kill to Gopinath, you cannot return back your money. And just to take his horses according to the proper value. And the rest of his value, maybe he will give slowly return back. The simple way. Then king told, this is true, but I did not know. I did not give order to Gopinath have to kill. But Prince Rajputra ne kya kiya? Rajputra, the king also, the prince gave order. Okay, put fell down in the king. Then Harichandan, he returned back to king. I don't know, king gave order. And he should not be killed. Then again returned back, Gopinath had to return back to the Changa. And in this way, Chaitanya Mahaprabhu Jagannath saved to him. This katha. Good Premanandi. He really did take the money and spend with girls and dancing with the ladies. Huh? That's why you have to sell his horse. He not these those. He misused the money. Where is this money? Gone. Where is the money is coming? From the tax from the people. Taxes. That is, here did not misuse this one. That means he misused means he enjoyed of anyhow.
he enjoyed the sense gratification. Eh? I think he did not to enjoy money with the dancing with the girls, but sometimes become angry that this word he is using. Eh? Understand? This is some language what is going on this. That means you enjoyed the money with your own purpose. Eh? This that. चलते हैं चलो 7:30 बज गया चलो बंद कर दो